भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीसकांता राधा कांता नमस्तुते तप्त गौरंगी तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमयी हरि प्रिय. Today we are going to read and study from second chapter from Bhagavad as it is, 48th verse. Yogastha Kuru Karmaninam Sangam Tevakta Dhananjaya Siddhi Yasiddhiyo Samo Bhutva Samatvam Yog Uchyate. Perform your duty equiposed, O Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. Purport: Krishna tells Arjuna that he should act in yoga. And what is that yoga? Yoga means to concentrate the mind upon the Supreme by controlling the ever disturbing senses. And who is the Supreme? The Supreme is the Lord. And because he himself is telling Arjuna to fight, Arjuna has nothing to do with the result of the fight. Gyan or victory are Krishna's concern. Arjuna is simply advised to act according to the dictation of Krishna. The following of Krishna's dictation is real yoga, and this is practiced in the process called Krishna consciousness. By Krishna consciousness only can one give up the sense proprietorship. One has to become the servant of Krishna or the servant of Krishna. That is the right way to discharge duty in Krishna consciousness, which alone can help one to act in yoga. Arjuna is a Kshatriya, and as such as he is participating in the Varna Ashram Dharma institution. It is said in the Vishnu Purana that in the Varna Ashram Dharma the whole aim is to satisfy Vishnu. No one should satisfy himself as is the rule in the material world, but one should satisfy Krishna. So unless one satisfies Krishna, one cannot correctly observe the principles of Varnashram Dharma. Indirectly, Arjuna was advised to act as Krishna told him. Now, if we consider this very closely, in the entire Bhagavad, it is said that the attachment should not be there. It has to be detachment. And then the only question comes that if we are detached, then how can we have the same intensity to do the actions? Believe me, if I am not attached to the intention of purchasing a car for me, let's say, why I should even, pay 5 lakhs or 10 lakhs for a car? And if I don't have any intentions for car, then why should even, I work very hard to actually maintain a lifestyle? So, to mundane people, it would look very obvious that we have to take care of a lifestyle, and that's why there has to be attachment. And many of the times when I speak to people, they laugh at they laugh at us that you guys are not uh, uh, s- commercially. It should not be this way, and I internally I feel so
so much sympathetic about all such people that कि काश इनको समझ में होता कि जो हम कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। हम अटैचमेंट को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। हम ये नहीं कहते कि आप काम करना छोड़ दीजिए, आप 5, 10, 20, 25 लाख कमाना छोड़ दीजिए, हम ऐसा कभी कुछ नहीं कहते। What we say, we basically say डिजायर कीजिए, बट डिजायर कृष्णा के लिए कीजिए। Imagine if you have an attachment or if you have a desire to buy a car और वो कार आप कृष्णा के लिए खरीद रहे हैं। नाउ लुक एट द ब्यूटी ऑफ दैट कर्म एंड दैट इज कॉल्ड कर्म योगा। कि आपके मन में डिजायर है पर वो किसके लिए है? कृष्णा के लिए। कि हाँ, मैं कृष्णा के लिए गाड़ी खरीदूंगा और कृष्णा उसमें होंगे एंड मुझे पैसा भी चाहिए। अब जब आपके एंड तक का जो पूरा कर्म का जो एंड है वो किस पर चला गया? सुप्रीम लॉर्ड पर। ना सुप्रीम लॉर्ड विल टेक केयर ऑफ इट। और आप क्या कर रहे हैं? आप उसके सिर्फ निमित्त साधन बन के, पर एनर्जी से, बिकॉज यू लव कृष्णा, यू रिस्पेक्ट कृष्णा, यू आर अ ट्रू डिवोटी ऑफ कृष्णा। तब आपको उस कार्य हेतु जो योग धर्म है, जो माया धर्म है, वो धर्म नहीं सिर्फ बनेगा। आपको उसके फल की इच्छा के लिए दोबारा से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो कर्म जो है वो कर्म धर्म नहीं है, वो कर्म आपका योग हो गया। आपने वो कर्म कृष्णा के लिए किया, कृष्णा के लिए किया तो दैट्स इट, खत्म। अब आप उसके बंधन में नहीं पड़ेंगे। हाँ, लेकिन वो कार्य करेंगे, उसमें पूरा आपका पैशन होगा, पूरी आपकी एनर्जी होगी, तो होगा क्या? या तो वो कार्य संपन्न हो जाएगा, अगर वो कंप्लीट हो जाता है, यू विल बी हैप्पी। फॉर व्हाट? Because you purchased a car for Krishna, and then Krishna and you and Krishna, you're going places, you'll feel more happy. However, let's see कि आप कार नहीं ले पाए because of XYZ reason, तब क्या होगा? It's fine, कृष्णा के लिए किया था, अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, चोर नहीं है दिल में, पर नहीं बना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। कृष्णा को चाहिए नहीं थी कार, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कृष्णा तो साथ है ना, है ना? सो दोनों ही तरफ में आपका जो बैलेंस है माइंड का वो सेट रहता है। एंड इट इज नॉट दैट हम ये बैलेंस बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हर आदमी अपने स्पिरिचुअलिटी के एक एज पे रहता है। मे बी 50 to 70% लोग तो स्पिरिचुअलिटी के बिल्कुल पास ही नहीं होते। फैशन है स्पिरिचुअलिटी काफी लोगों के लिए, और बाकी लोगों का जहां जहां उनका लेवल है, अगर उनको किसी भी तरीके से बात समझ में आती है वो जायज है। एट द एंड बात समझ में आनी चाहिए। जैसे कि जब सो कॉल्ड, मैं खुद को ही लेके चलता हूं, मैं जब बच्चा था शायद, तो शायद नहीं पक्का तो उस टाइम स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं डिजायर्स इस ढंग से थी कि आप हरिद्वार जाके कहीं पर कुछ मन्नत मांगेंगे तो आपको कुछ मिल जाएगा, है ना? तो मंदिर में जाके अगर आप मंगलवार का ये करेंगे तो कुछ हो जाएगा। अगर आप भगवान के आगे जाते हैं तो आपको ऐसा आ, माथा टेकना है और ये सब कुछ करना है तो ठीक रहता है। तो एक ये फियर वाला रिलीजन है, और फिर हम उसमें स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, मुझे ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से ही है, मेरा मन अच्छे से टिका हुआ है। ऐसे काफी लोग मिल जाते हैं जो कि मॉडर्न हैं और उनको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उनके लिए ये उनके लिए ठीक है। तो पहली कैटेगरी
जो कुछ मांगने जा रही है वो भी सही है, एक कैटेगरी जो मांगती नहीं है, दिल से कनेक्टेड है, वो भी सही है। उसके बाद जब हम ये बात करना शुरू करते हैं कि हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं और उसके लिए रीजन सोचना शुरू करते हैं, वो भी सही है। और आगे जाते 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 जब आप ये सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे तो आप एक ऐसे ब्यूटीफुल मकाम पे पहुंच जाएंगे तो आपको लगेगा कि स्पिरिचुअलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। खैर, सो अटैचमेंट, इस वर्स में जो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट अटैचमेंट शुड नॉट बी देयर, बट दैट डजंट मीन कि डिजायर शुड नॉट बी देयर, बिकॉज अगर डिजायर्स भी नहीं होंगी और आपकी अटैचमेंट भी नहीं होगी तो फिर आप जी नहीं पाएंगे। एंड अच्छा भी है, जैसे कुछ लोग हैं जो डिटैच हो जाते हैं, उनको अटैचमेंट नहीं है और वो क्या करना चाहते हैं, वो उनको हिमालय चले जाना चाहिए, है ना, उनको वृंदावन चले जाना चाहिए, वहाँ सेवा करनी चाहिए, प्रीचिंग करनी चाहिए। तो जो डिटैचमेंट के लिए कहते हैं कि मेरी कोई डिजायर्स नहीं है या मेरी कोई अटैचमेंट्स नहीं है, तो उनको सच में वैसे देखना चाहिए। अब अगर ऐसे लोग जिनको डिटैच हो गए हैं सो कॉल्ड और उनको कोई डिजायर नहीं बची, तो उनका इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में रह के, गृहस्थ आश्रम में रह के अगर काम करना है तो वो पूरा नहीं होता। कैसे? मैं अगर कहूं कि मैं गृहस्थी हूं और मुझे किसी से भी अटैचमेंट नहीं है और मैं तो किसी को भी नहीं देखूंगा, मैं अपने स्पाउस को प्यार नहीं करूंगा, अपने बच्चों को प्यार नहीं करूंगा, अच्छी टी शर्ट नहीं डालूंगा, अच्छा पैसा नहीं कमाऊंगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं बहुत डिटैच हो गया हूं। पर मुझे लगता है कि अगर मैं डिटैच हो गया हूं तो मुझे घर में अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पैसों को दे के, अपने बड़ों को जिसको भी देना है, मुझे गाड़ी की चाबी, बैंक का सब कुछ, नौकरी वोकरी सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लेना चाहिए और फिर मुझे चले जाना चाहिए, है ना। अगर मैं इस काबिल हूं और फिर सच में जाके मुझे वृंदावन या हिमालय में जाके जो भी मेरा भक्ति का जो भी कुछ है वो मैं करूं, तब मैं सच में समझूंगा कि हाँ, मैं डिटैच हो चुका हूं इस सारी दुनिया से। पर ऐसा है नहीं। काफी लोग हैं जो कहते हैं कि हम डिटैच हो गए हैं और वो क्या करते हैं, वो मटेरियल वर्ल्ड में भी रहते हैं और उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर 10 चीजें हैं जिसके साथ वो पूरी अटैचमेंट दिखाते हैं, और जहां उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी होती हैं, जिनके साथ वो अच्छे से ग्रोस हेट करते हैं या जिनको वो डील नहीं कर पाते या जो उनके लिए होती नहीं है, जैसे कोई एक आदमी है वो पैसा नहीं कमा सकता, कोई आदमी है रिलेशन नहीं कमा सकता, प्यार नहीं कमा सकता, कोई आदमी है रिलेशन रख नहीं सकता, कोई आदमी है जिसको नाराजगी बहुत होती है, तो वो इन चीजों को शन करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके कहते हैं कि हाँ, हम डिटैच हैं इसलिए हम ये काम नहीं करते, बट स्टिल वो इसी मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, बट वो उस चीज को यूज कर लेते हैं। तो उस चीज का भी फायदा नहीं है। उसमें नुकसान क्या है कि एक गृहस्थ में होके अगर मैं कहूँगा मैं तो पूरा डिटैच हो गया हूँ, मैं तो मुझे अब कुछ नहीं है, मुझे तो सिर्फ कृष्णा कृष्णा दिखाई देते हैं, एंड देन मैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतने रस के साथ नहीं करता। देखिए, हम कृष्णा कॉन्शियस के लोग रसा आनंदित बांके बिहारी गोवर्धन दारी कृष्णा, उनको प्रेम करते हैं, और रस को ही अगर नहीं देखेंगे, नीरस होके अगर काम करेंगे, तो हम क्या कृष्णा कॉन्शियस में रहेंगे। अगर हमारे प्रभुपाद जी इतने खुश होके उनके चेहरे पे जो आपको खुशी दिखाई देती है, वो नीरसता की आपको खुशी ऐसा नहीं होता। आप किसी भी इसको उनके अच्छे टीचर को देख लीजिए, उनके एक चेहरे के ऊपर जो खुशी है, और ऐसा नहीं है जो इस्कॉन में जो गृहस्थ में भी हैं जो, लेकिन जो समझ के गृहस्थ में हैं और फिर खुश भी हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने गृहस्थ आश्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी उतने ही महत्वपूर्ण से रस को लेके पूरा करते हैं। पैसा कमाना है, हाँ, अटैचमेंट के साथ,
अंदर से वो जानते हैं कि वो अटैचमेंट कृष्णा के लिए है, स्पाउस को खुश रखना है अंदर से, कृष्णा के लिए। शायद वो अपने स्पाउस में राधा या अपने स्पाउस में कृष्णा एज पर द जेंडर देखते होंगे। वो अपनी पूरी फैमिली को आसपास जो है यशोदा एंड नंद महाराज के तरीके से जीते होंगे। सोच के देखिए इन चीजों को। गृहस्थ में है तो गृहस्थ में अच्छे से रस लेके कीजिए, कृष्णा में होके कीजिए। नीरस होके करना है, सन्यास लीजिए, गृहस्थ छोड़ दीजिए। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत मायने रखती हैं। हम दो चीजों के बीच में ऐसे नाव पैर नहीं रख सकते, हमें एक जगह रखना चाहिए और फिर उसको स्ट्रेट चलना चाहिए। सो दिस वर्ड सेज अटैचमेंट के ऊपर बहुत खूबसूरत तरीके से कहा हुआ है। एंड यही हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे की वर्ड्स पढ़ते हैं। दुरेन द्वारमम कर्मम बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमोक्षे कृपणः फलहेतवः। O Dhananjay, keep all abominable activities for distance by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. Purport: one who has actually come to understand one's constitutional position as an eternal servitor of the Lord gives up all engagement save working in Krishna consciousness. As already explained, Buddhi Yoga means transcendental loving service to the Lord. Such devotional service is the right course of action for the living entity. Only misers desire to enjoy the fruit of their own work just to be further entangled in material bondage. Except for work in Krishna consciousness, all activities are abominable because they continually bind the worker to the cycle of birth and death. One should therefore never desire to be the cause of work. Everything would be done in the Krishna consciousness for the satisfaction of Krishna. Misers do not know how to utilize the assets of riches which they acquire by good fortune or by hard labor. One should spend all energies working in Krishna consciousness, and that all make one's life successful. Like misers, unfortunate persons do not employ their human energy in the service of the Lord. Beautifully, it is mentioned that most of the people, they are focused in the material life. They are detached. They are not attached with any God, and then they go through the pain and the miseries of the life. So it says that you have to live for Krishna. See, this is very beautiful. Mostly people are living for their own self, and जब हम अपने लिए जीते हैं, जब मैं छोटा हूँ तो मैं पढ़ लूँ, मेरे एग्जाम्स हो जाएं, फिर नौकरी लग जाए, फिर शादी हो जाए, एंड फिर घर बन जाए, और फिर उसके बाद ऑफिस में सब ठीक रहे, तो वो बढ़ती रहती हैं, फिर बच्चे बड़े हो गए, फिर दोबारा से वो साइकिल। तो हम सब हमेशा जो है अपने लिए जीते हैं, औरों के लिए भी जीते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए जीते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के लिए भी जीते हैं, उनके लिए भी करते हैं, हम समाज के लिए भी करते हैं, जो हमसे बन पड़ता है। लेकिन आप अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए कि हम हैं कौन। ये सब कुछ करते हुए आखिर आप हैं ही कौन? क्या आप ये शरीर हैं जो जिए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं? अगर आप आंख बंद करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बचपन से लेके अब तक कितना आपका शरीर चेंज हो गया है। तो आप तो शरीर नहीं हो सकते। आप आंख बंद करके अभी से अभी कोशिश कीजिए और जाके देखिए, बचपन में आप जा पाएंगे, आप वापस आ पाएंगे। वो चीज कभी चेंज नहीं होती, जो हम खुद सोचते हैं वो कभी चेंज नहीं होती। दैट अवेयरनेस इज ऑलवेज देयर।
वही एक स्टैटिक चीज है आप में, जो वही अवेयरनेस आपके 5th क्लास को देख सकती है, आपके 10th क्लास को देख सकती है, आपको देख सकती है, आगे की फ्यूचर की एंजाइटी को भी देख सकती है। आप वो चीज हैं। अगर आप वो चीज हैं तो इस बॉडी को आप इतना ज्यादा तवज्जो क्यों देते हैं? आपके आसपास के रिलेशन देखिए, 5-5, 10-10, 15-15 साल के बाद चेंज हो जाते हैं। कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग नए आ जाते हैं, रिलेशन चेंज हो रहे हैं, घर चेंज हो जाता है, थॉट्स चेंज हो जाती हैं, जो आदतें हैं वो चेंज हो जाती हैं 5-10 साल के बाद, कपड़े चेंज हो जाते हैं, जगह चेंज हो जाती है, ऑफिस चेंज हो जाते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। आप लेकिन आपकी अवेयरनेस तो आप उसको पकड़ के रखिए ना जो आप हैं। और अगर आप वो चीज हैं जो आप जानते नहीं हैं और आप उस चीज के पीछे अपनी लाइफ जो है वेस्ट कर रहे हैं, शरीर के पीछे, दिमाग के पीछे, रिलेशंस के पीछे, अब आप कहेंगे नहीं 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 हम वेस्ट नहीं कर रहे। मैं समझ सकता हूँ आप वेस्ट नहीं कर रहे, कोई भी वेस्ट नहीं करता अपनी लाइफ को, हर कोई अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीता है और इसलिए सुबह उठता है, नहाता धोता है और काम करता है और शाम को सिर्फ यही सोचता है कि आज काम खत्म हो गया, रेस्ट करूं, पूजा करूं या टीवी देखूं, एंड देन अगले दिन के लिए चला जाता है। उसके बाद सैटरडेज शॉपिंग या कहीं जाना। इस पूरे सर्कल में लाइफ कहाँ निकल जाती है कुछ पता नहीं चलता। और अगर आप इसमें पूरा देखेंगे तो आप ये जान देखेंगे कि आप ये सब काम जो कर रहे हैं या तो शरीर के लिए कर रहे हैं या अपने दिमाग के लिए कर रहे हैं। अगर आप योगा भी कर रहे हैं तो अपने मन को शांत करने के लिए कर रहे हैं। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। अगर खा रहे हैं तो शरीर के लिए कर रहे हैं, दिमाग के लिए कर रहे हैं। कमा रहे हैं तो आगे से शरीर के लिए, दिमाग के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप जो हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं? जब आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो आप कृष्णा को कैसे पहचानेंगे? और जब आप कृष्णा को नहीं पहचानेंगे और अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो जिस तरीके का हम एक रिलेशन रखना चाह रहे हैं वो कैसे कर पाएंगे? सो ये कुछ डीप चीजें हैं लेकिन उनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आ जाएंगी धीरे, डोंट वरी अबाउट इट। एक हम किसी स्टेप पे हैं, आप लगे रहिए अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अपने आप पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्स नंबर 50। बुद्धि युक्तो जहा तही उभे सतृक दृष्कृते तस्मदोगाम्य युगस्य योगः कर्मसु कौशलमम्। A man engaged in devotional service rides himself of both good and bad reaction even this endless life. Therefore strive for yoga, which is the art of all work. Purport. Since time immemorial, each living entity has accumulated the various reactions of his good and hard work. As such, he is continuously ignorant of all his real constitutional position. One's ignorance can be removed by the instruction of Bhagavad Gita, which teaches one to surrender unto Lord Shri Krishna in all respects and becomes liberated from the claimed victimization of action and reaction. Birth after birth, Arjuna is therefore advised to act in Krishna consciousness, the purifying process of resultant action. How beautiful it is that everything that you do, everything and everything, if I'm just taking this mouse, I need to do it in Krishna consciousness. Krishna, hey, buddy, right? I'm picking this mouse for you. And Krishna would say, okay, I'll take this mouse. Now you would say, what is the fun on understanding it? Understanding the fun is that I remember Krishna in my real life. It's not that one should remember Krishna only in the morning when they're chanting or only when they go to temple or Vrindavana. No, it has to be constant focus on Krishna. So there are different ways the devotee of Krishna they engage themselves in the entirely the day. They do the Krishna, they do the chanting in the morning, 16 round of beads.
then they do the Sankirtana, they read Bhagavad Gita, they actually do the deity worship, they actually do the Shringar, and then they cook for Krishna and Radha. They serve them. They keep the 5 times they keep serving. So the entire day goes into a direction. But if the person like if I am a working person, I cannot have that much time to serve. I wish I was only doing that thing. I wish. But let's say if I am in corporate and I cannot do it, I have to do work to earn and to feed my family and to feed the reasons that I have to live, then what I have to do? I cannot afford to leave Krishna. So that living in Krishna consciousness is what this verse is telling. That do anything and everything. Let's say if I go to office, I am going to office for Krishna and Krishna is with me. Then I reach office. I am talking to Krishna. I am in real time talking to Krishna. My thought process is with Krishna. If the thought is coming, it's not coming only for my mean thoughts. And that is the beauty. If Krishna is there, if your God is there with whom you love so much, how can you have bad thoughts? You will never think anything bad for anyone. You will not have that cheapo ख्याल in your. You will not have any काम क्रोध लोभ तो आपके रास्ते में आता ही नहीं है, right? And then you don't have fear and anxiety because you have Krishna with you. The Supreme Lord is with you. How can something bad happen to you? And even if something bad happen, that bad thing happening is to the body or to mind or to the world or to things, that all is Maya. आत्मा को कुछ नहीं होता है ना. आत्मा को ना काटा जा सकता है ना जलाया जा सकता है, बट वो आत्मा को समझना जरूरी है. तभी आप उसको समझ के करेंगे, नहीं तो आप काटेंगे तो हाथ में दर्द होगा, राइट. So I remember, there was a time when there was a guy, he had an operation and he was such a Krishna consciousness. He just thought, okay, fine. And he went through the entire operation part. There was just a small operation and there was no pain because he disconnected himself from the body and mind, and he actually had that awareness जहाँ पे उसने वो कर दिया. ऐसा ही होता है, चाहे वो अद्वैत वेदांता में आप देखिए, जो भी अच्छे बड़े लोग हैं वो अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं. जब आप अपने आप को पहचान लेते हैं तभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं. अगर आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं और अपने आप की आइडेंटिटी आप बॉडी माइंड एंड रिफ्लेक्टेड सोल के साथ करेंगे, देन आप तब तक नहीं कर पाएंगे. एनीवे, सो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जीना. अब जैसे मैं एचआर में हूं, तो जब मैं हायरिंग कर रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि आई एम कॉलिंग समवन who is a part and parcel of Krishna. I'm trying to make someone happy. I'm doing some appraisal. Again, I'm trying to make someone part and parcel happy of Krishna, right? I'm moving. Maya के बीच में मैं move कर रहा हूँ. So Krishna remains there. And it gives me all the opportunity to stay stable, and then it gives me back end also कि मैं Krishna consciousness में रह सकता हूँ. So, practically speaking, to live in Krishna consciousness is so easy. Krishna is so merciful. Krishna is so Q2 that it all depends how connected you are. The only thing is, let's say, if you are not in love with Krishna or you are not a devotee of Krishna, then what will happen? You may have some love for someone. Then what will happen? You have love for that some person. Then what will happen? आप गाड़ी चला रहे हैं, आप सोच रहे हैं हाँ वो क्या कर रही होगी या क्या कर रहा होगा. आप जहां भी जा रहे हैं आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, राइट. यही तो माया सिखाती है. सो इफ यू आर सो माया जो है वो सिखा रही है कि कैसे प्यार करते हैं बेवकूफों की तरह. क्योंकि मटेरियल चीज के ऊपर प्यार, आसक्ति कहाँ है? मटेरियल चीज पे. आसक्ति कहाँ है? कार पे. आसक्ति कहाँ है? इन चीजों पे. वही आसक्ति कहाँ होनी चाहिए? कृष्णा पे. सोचने वाली बात है कि नहीं? हम अपने सबसे
प्यार को, सब चीज़ों को, मटेरियल चीज़ों में जो कि टेम्परेरी हैं उसमें लगा देते हैं, परमानेंट में कभी नहीं लगाते हैं. दैट्स व्हाई वी कीप ऑन हैविंग पेन एंड प्लेजर इन द लाइफ. अरे अच्छा, असली प्लेजर जो है, जो इम्परमानेंट चीज में होगा ना, सॉरी परमानेंट चीज में होगा ना, इम्परमानेंट चीज में क्यों होगा? सो उस चीज को समझने के लिए you'll have to have that constant thinking. Let's try to do one more verse today. कर्मण्य बुद्धि युक्ता ही फलम तव्यक्तवा मनीषिणः जम तक विद्धि मुक्तहम पद्मम गच्छन्तामयानम. By thus engaging in the devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the results of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to the Godhead. Purport: the liberated living entities belong to the place where there are no material miseries. For one who has accepted the boat of lotus feet of the Lord, who is in the shelter of the cosmic manifestation and is famous manifestation as is famous Mukunda, or the giver of Mukti, the ocean of the material world is like the water contained in a calf footprint. Parampadam, or the place where there are no material miseries, or Vaikuntha, is his goal, not the place where there is a danger in every step of life. Chewing, owing to ignorance, one does not know that this material world is a miserable place where there are dangers at every step. Out of ignorance only. Less intelligent person try to adjust to the situation by fruitive activities, thinking that the resultant actions will make them happy. They do not know that no kind of material body anywhere within the universe can give life without miseries. The miseries of life, namely birth, death, old age, and diseases, are present everywhere within the material world. But one who has understand his real constitutional position as the eternal servitor of the Lord, and thus knows the position of the personality of Godhead, engages himself in the transcendental loving service of the Lord. Consequently, he becomes qualified to enter into the Vaikuntha planets, wherein there is neither material miserable life nor the influence of time and death. To know one's constitutional position means to know also the sublime position of the Lord. One who wrongly thinks that the living entity's position and the Lord's position are on the same level is to be understood to be in the darkness and therefore unable to engage himself in the devotional service of the Lord. He becomes the Lord himself and thus paves the way for the repetition of birth and death. But one who understanding that his position is to serve transfers himself to the service of the Lord, at once become eligible for Vaikuntha Goloka, Dhamloka. Service for the cause of the Lord is called Karma Yoga or Buddhi Yoga, or on the plain words, devotional service to the Lord. So that is the crux basically, that if you do your karma yoga, buddhi yoga, bhakti yoga, and if you're not get entangled into this karmic chakra, then you basically get liberation at the end, and then you go and stay at Vaikuntha in Krishna's dham. So that is, I think, is the need of everyone. बट अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? होगा क्या? बूढ़े होंगे, मर जाएंगे, दोबारा से आत्मा फिर से कर्मों को लेके एक थैला, एक बोझ लिए हुए दोबारा से जन्म लेगी, फिर वही 9 महीने उल्टा लटकना, फिर वही स्टडीज, फिर वही टीनेजर, फिर वही नौकरी छोकरी एंड सब ड्रामा, एंड देन पैसा कमाना, देन वही
चाहतें, सेक्स डिजायर, एसेट्स, वही फिर आगे सब कुछ बनाना, इन सब चीज़ों में जाना, एंड देन उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज बना लेना, सब कुछ कर लेना, और फिर वही आगे बीमारियां, एंड देन फिर डेथ। तो इसी चक्कर में ही घूमते रह जाना है। अगर रहना है ऐसा घूमते हुए तो अच्छी बात है, रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको नहीं लगता कि इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाना चाहिए? और मैं अगर बारीकी से देखूं, मैं कई लोगों से जब बात भी करता हूं और वो ये कहते हैं, यार वी डोंट वांट टू गेट ऑल इन दिस, जो हमें करना है हमारे पास पहले बहुत टेंशन्स हैं, बहुत कुछ है करने के लिए, या यू जस्ट गो अवे। एंड मैं चला भी जाता हूं। अब इस चीज को समझते हैं कि ये कैसे हमारे हमारे को कैसे दिखती है। आप मान लीजिए अगर आप 35 या 40 साल के उम्र में हैं, या 40-45 में हैं, आप एक बच्चे को देखिए जो 2 साल का है और वो एक खिलौने से खेल रहा है, और उस खिलौने को वो इतने अच्छे से उससे खेलता है, अगर आप उससे खिलौना लेने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ज्यादा रिटेलिएट करता है। तो आपको क्या लगता है? आप उसको प्यार करते हैं और उसको खिलौना दे देते हैं। पर क्या वो खिलौना आपके लिए उतना मायने रखता है जितना उस बच्चे के लिए? नहीं। क्या उस बच्चे की प्रॉब्लम की ये खिलौना मेरे पास रहे और ये सब कुछ क्या आपके लिए मायने रखता है? नहीं। वैसे ही ये मटेरियल लाइफ के अंदर जो सब सो कॉल्ड मटेरियल लोग हैं, जो इतना मटेरियल लाइफ के पीछे जाते हैं, वो एक स्पिरिचुअल पर्सन को, उसके लिए उसको मायने नहीं रखता। उसकी प्रॉब्लम्स, मटेरियल आदमी की प्रॉब्लम्स, और वो उनको बुरा भी नहीं मानते। उनको मालूम है कि ये भी एक दिन स्पिरिचुअल बनेंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो इन दी जर्नी। आज नहीं, 1 साल बाद नहीं, 10 साल बाद, इस लाइफ में नहीं, अगली लाइफ में ये भी उसी जगह जाएंगे। और यही रीजन है कि सभी स्पिरिचुअल टीचर्स बोलते हैं, सब अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग्स करते हैं कि कोई ना कोई आदमी उनकी आवाज को सुनेगा, और किसी ना किसी को वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कहीं फायदा देंगी, एंड वो आगे जाके उसको कभी यूटिलाइज कर पाएगा। प्रभुपाद कितना उन्होंने आखिर दम तक वो रिकॉर्डिंग करते हुए, बोलते हुए गए। हमारे जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, चाहे वो इस्कॉन से हैं, चाहे वो रामाकृष्ण मिशन से हैं, चाहे वो शिवा भक्ति से आए, चाहे वो लक्ष्मी भक्ति से आए, चाहे वो मेडिटेशन विपासना से आए, चाहे वो आपका निरंकार से आए, चाहे वो जीसस क्राइस्ट से आए, चाहे अल्लाह से आए, चाहे कहीं से भी आए, जो स्पिरिचुअल टीचर हैं इसीलिए बात करते हैं। और कहीं ना कहीं हमें उनकी बातों को सुन के हमें अच्छा भी लगता है, और कहीं ना कहीं उनकी बातों से हमें सोल्यूशन भी मिलते हैं, और हमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किसी को कुछ कट कर जाती है, लग जाती है बात। तो इसलिए आ, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप चाहे जैसा फील करते हो, आप चाहे किसी भी स्टेप पर हो, वो सीढ़ी होती है ना कि आपको मनसा देवी जाना है तो 200 स्टेप्स हैं, तो चाहे आप पहले स्टेप पे हैं, चाहे 50 स्टेप पे है, चाहे आप 100 स्टेप पे हैं, एटलीस्ट जब तक आपने सीढ़ी पकड़ रखी है तब तक आप ठीक हैं। और मैं तो ये मानता हूं हर आदमी ने, हर इंसान ने सीढ़ी किसी ना किसी तरीके से पकड़ी ही हुई है। बहुत मुझे नहीं लगता कि कोई भगवान, होंगे ऐसे लोग होंगे जो भगवान को बिल्कुल ना मानते, देयर आर सो मेनी पीपल, बट ज्यादातर इंडियंस को अगर मैं देखूं तो सभी किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं और उस सीढ़ी के ऊपर चले ही हुए हैं। बट जैसे जैसे हम एडवांस होते रहते हैं और हम ये समझते हैं कि ये भागवत कह क्या रही है, कि हाँ, हम अपने सारे कर्मों को डिटैच होके, कैसे अटैच होके कैसे करें, जिससे हम काम करने की एनर्जी के ऊपर असर ना पड़े, या आपके घर वालों को ये ना लगने लग जाए कि आप मिजरेबल हो गए हैं। पीछे मैं एक सेशन ले रहा था तो वहां पर एक 17-18 साल की लड़की थी, एंड शी सेड कि सर मैं ये नहीं करना चाहूंगी, शुरुआत में ही जब इंट्रोडक्शन चल रही थी, एंड शी सेड कि मैं किसी और
रिलीजन में कोई उन्होंने अपनी माँ से या किसी को देखा होगा और वो कैसे किसी से बात नहीं करती, किसी से फन नहीं करती और नीरस सी हो गई हैं, तो मैं ऐसे स्पिरिचुअल नहीं बनना चाहती। तो मैं अपनी तरफ सोच रहा था कि मैं मुझे नहीं मालूम कि मैं किस लेवल पे हूँ, बट हाँ मैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करता हूँ और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करता हूँ, रियल टाइम में करता हूँ। पर मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी हूँ, मैं बाइक भी चलाता हूँ रॉयल हिमालयन, मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ, मैं आई लव माई स्पाउस वेरी मच राइट, आई लव माई किड्स वेरी मच बिकॉज तो मुझे नहीं लगता कि स्पिरिचुअलिटी के बाद लाइफ नीरस हो जाती है। और मैं पैसा भी बहुत कमाना चाहता हूँ, करोड़ों में कमाना चाहता हूँ, प्रॉपर्टीज भी काफी बनाना चाहता हूँ। अब समझने की कोशिश कीजिए कि अगर स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक लाइफ दोनों चीजें अलग नहीं हैं, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जब आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में जाते हैं तो आप मटेरियलिस्टिक लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं, क्योंकि तब योग महायोग बन के आपको हावी नहीं होता। आप तब योग ज्ञान योग कर्म करके माया के ऊपर आप हावी होके अपने, क्योंकि शरीर तो मिला है ना, जीना तो है ही। ये थोड़ी है कि स्पिरिचुअल हो गए एंड टक, वाओ, फिर तो स्पिरिचुअलिटी बहुत ही डिस्ट्रक्टिव प्रोपोजिशन बन जाती है किसी के लिए भी। स्पिरिचुअल हो जाना मतलब देन यू हैव टू लिव। कुछ लोग हैं वो स्पिरिचुअल होके हिमालयन चले जाते हैं, गुड गुड फॉर देम। कुछ लोग हैं वो कॉरपोरेट में ही रहते हैं, औरों को बताना चाहते हैं और वो कृष्णा के लिए या जो भी उनके इष्ट देवता है उनके लिए काम करना चाहते हैं। कृष्णा, वो स्पिरिचुअल, सबसे बड़े स्पिरिचुअल सुप्रीम लॉर्ड, क्या वो सब कुछ छोड़ के चले गए? नहीं। आप कह सकते हैं कि हाँ तो आप कृष्णा नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे अभी। बट अर्जुना, अर्जुना को भी कृष्णा ने ये कभी नहीं कहा कि आप छोड़ के चले जाइए। ध्यान कृष्णा में ही, लेकिन डू द बैटल ऑफ दिस कुरुक्षेत्र एंड किल एवरीवन। सो जुड़े रहिएगा, आगे चलते रहेंगे। अभी हमने ये भागवतम भागवत गीता शुरू की है, सेकंड चैप्टर से हम कर रहे हैं। सो सभी 18 चैप्टर करेंगे और उसके बाद फिर हम श्रीमद् भागवतम शुरू करेंगे और फिर उसके बाद चैतन्य चैतन्यामृत। सो प्रपोजल वही रहेगा कि प्रभुपाद की बुक्स हैं, इस्कॉन की बुक्स को ही हम पढ़ते हैं और श्लोक जैसे भी पढ़ते हैं, जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई गलती करें तो माफ़ी, एंड पर्पेट हम पढ़ें और उसके बाद जो हमें समझ में आया है उसको हम उसी उस श्लोक को आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली एक कॉर्पोरेट लैंग्वेज से आपको समझा सकें, बिकॉज हम कॉर्पोरेट से बिलोंग करते हैं, तो उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आपको समझाना चाहते हैं, ये करने में हमें बहुत आनंद आता है। हम अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, हम कृष्णा को फील कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं ये लगता है कि कृष्णा की सर्विस कर रहे हैं। सो लेट्स प्रे टू एंड लेट्स चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।